Assalamu alaikum students, how are you? Hoping that you will be fine by the grace of Allah and doing good. Students, welcome to all of you in my class, and today we will start unit number 11, Noise in the Environment, and it is of class 9th. Students, in this chapter we will discuss about the noise and about different ways of noise and its effects on human health, that how noise environment disturbs the man's life. In this regard, many steps are needed to reduce noise level individually. So let's start with reading of paragraph number 1. Noise pollution is defined as any form of noise that disrupts the normal functioning of life. If left unchecked, it can have serious effects on the mind and body of humans. Translation देखते हैं इसकी. Noise pollution is defined as any form of noise that disrupts mean किसी चीज को इंटरप्ट करना या परेशान करना मुदाखलत करके द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ, किसी भी किस्म का शोर जो इंसान की जिंदगी में मुदाखलत पैदा करता है, शोर की आलूदगी कहलाता है. इफ लेफ्ट अनचेक्ड इट कैन हैव सीरियस इफेक्ट ऑन द माइंड एंड बॉडी ऑफ ह्यूमंस. अगर इस आलूदगी को बगैर निगरानी के छोड़ दिया जाए तो ये इंसान और जानवरों के जिस्म और दिमाग पर संगीन असरात मुरतब कर सकता है. Students, in this paragraph we are told about the definition of noise. Noise is defined as term that disturbs the man's life with different sounds, and these sounds are not good to listen. You can see that we have a question in the side box. What is normal functioning and how is it disrupted? नॉर्मल फंक्शनिंग जो है, लाइफ की जो रूटीन है वो क्या है और ये इसमें मुदाखलत कैसे होती है, ये कैसे डिस्टर्ब होती है. आंसर विल बी द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ इज दैट वन विच इज फ्री ऑफ डिस्ट्रप्शन. इट इज डिस्टर्ब्ड बाय नॉइज पोल्यूशन. इसको डिसरप्ट क्या चीज करती है कि नॉइज पोल्यूशन जो है वो हमारी जिंदगी को डिस्टर्ब करता है, और यू कैन से डिसरप्ट. द नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 2. स्टार्ट रीडिंग ऑफ दिस पैराग्राफ. Noise pollution is one of the biggest sources of discomfort, stress and nuisance in Pakistan. In urban areas and big cities, noise pollution has reached to a dangerous level. For instance, a survey by the Punjab Environmental Protection Agency claims that the level of noise in Lahore has reached 91 decibels, whereas a maximum of 75 decibels is acceptable. This means that the mental and physical health of so many people is already at risk. Students, let's see explanation of this paragraph. Noise pollution is one of the biggest source of discomfort, stress and nuisance in Pakistan. पाकिस्तान में शोर की आलूदगी, तकलीफ, कशीदगी और अजियत देने वाले बड़े असबाब में से एक है. इन urban areas and big cities, noise pollution has reached to a dangerous level. शहरी इलाकों और बड़े बड़े शहरों में शोर की आलूदगी खतरनाक सतह तक पहुंच गई है. For instance mean for example. A survey by the Punjab Environmental Protection Agency claims that the level of noise in Lahore has reached 91 decibel, whereas a maximum of 75 decibel is acceptable. मिसाल के तौर पर पंजाब में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की एजेंसी के सर्वे के मुताबिक लाहौर में शोर की सतह 91 डेसिबल तक पहुंच गई है, जबकि ज्यादा से ज्यादा 75 डेसिबल तक काबिल कबूल है या काबिल बर्दाश्त है. डेसिबल वी विल यूज टू मेजर नॉइज. जैसे हम दर्जा हरारत की पैमाइश के लिए क्या यूज करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड. इसी तरह जो नॉइज है उसको मेजर करने के लिए हम डेसिबल का वर्ड यूज करेंगे. दिस मीन्स दैट द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ सो मैनी पीपल इज ऑलरेडी. इसका मतलब यह है कि बहुत से लोगों की जहनी और जिस्मानी सेहत पहले ही दांव पर लगी हुई है या पहले से ही खतरे में है. Students, noise pollution is a source of stress and causes discomfort for human life. Survey describes that noise level in Lahore is 91 decibel, whereas only 75 decibel is acceptable. It shows that how man's life has become risky due to noise pollution. Students, let's see paragraph number 3. The major causes of noise pollution in Pakistan are traffic on roads, construction sites, careless use of electronic appliances and loud speech patterns. Noise coming from different modes of transport, for example vehicles, airplanes, trains, ships, proves to be highly stressful for human communities. With the population growth and development in urban areas, the vehicular traffic has also multiplied.
This has given rise to noise pollution largely in the form of unwarranted honking by drivers. Also, the mushroom growth of residential colonies near airports and railway stations has exposed residents to permanent and unavoidable source of noise pollution. Let's see translation of this paragraph. The major causes of noise pollution in Pakistan are traffic on roads, construction sites, careless use of electronic appliances and loud speech patterns. पाकिस्तान में शोर की आलूदगी की अहम वजूहात सड़क पर ट्रैफिक, तामीराती जगह, कंस्ट्रक्शन साइट्स मीन तामीराती जगह, इलेक्ट्रॉनिक आलात और बुलंद तकरीर का लापरवाही से इस्तेमाल है. नॉइज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मुख्तलिफ किस्म के जराए या मुख्तलिफ जराए से आने वाला शोर. ट्रांसपोर्ट यानी आमदोरफ्त, नकलो हमल के या आमदोरफ्त के मुख्तलिफ जराए से आने वाला शोर. फॉर एग्जाम्पल, व्हीकल्स, एयरप्लेन्स, ट्रेन, शिप्स प्रूव टू बी हाईली स्ट्रेसफुल फॉर ह्यूमन कम्युनिटीज. मसलन गाड़ियां, हवाई जहाज, रेलगाड़ियों, बहरी जहाजों से आने वाला शोर इंसानी तबकों के लिए इंतहाई परेशान कुन साबित होता है. विद द पॉपुलेशन ग्रो डेवलपमेंट इन अर्बन एरियाज, द व्हीक्यूलर ट्रैफिक हैज आल्सो मल्टीप्लाइड. शहरी इलाकों की आबादी में इजाफा और तरक्की के साथ ट्रैफिक की गाड़ियों में भी कई गुना इजाफा हो गया है. दिस हैज गिवन राइज टू नॉइज पोल्यूशन लार्जली इन द फॉर्म ऑफ अनवारंटेड हॉकिंग बाय ड्राइवर्स. और बुनियादी तौर पर क्या बात है कि बुनियादी तौर पर ड्राइवरों की तरफ से गैर जरूरी हॉर्न बजाने की वजह ने ज्यादा शोर की आलूदगी को जन्म दिया है. ऑल्सो ऑफ रेजिडेंशियल कॉलोनीज near airports and railway stations has exposed residents to permanent and unavoidable source of noise pollution. इसके अलावा हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों के करीब रहायशी कॉलोनियों की तेज रफ्तार तरक्की ने रहायशियों के मुस्तकिल और नागुज़ीर आलूदगी के मुस्तकिल जराए को बेनकाब कर दिया है. या इससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से जो है वो आबादी के बढ़ने की वजह से शोर एक मुस्तकिल जरिया बन गया है इंसान की जिंदगी को डिस्टर्ब करने का. Students, in this paragraph we read about that there are many causes of noise pollution like traffic horns, electronic appliances, construction work, etc. And people are badly affected by this disturbance due to noise. Students, we have a question in the side box. Identify topic sentences, सपोर्टिंग सेंटेंसेस एंड कंक्लूडिंग सेंटेंसेस ऑफ द पैराग्राफ्स. अब जब पैराग्राफ्स की बात है तो वी कैन चूज एनी पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर. लाइक वी हैव बेस्ट एग्जांपल इन पैराग्राफ नंबर 2. नॉइज पोल्यूशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ डिस्कम्फर्ट, स्ट्रेस एंड न्यूसेंस इन पाकिस्तान. यहां तक आपका जो है टॉपिक सेंटेंस है, मेन जो सेंटेंस है वो आपका क्या दिया गया है, नॉइज पोल्यूशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट. यानी सबसे पहले हमें क्या बता दिया गया है कि नॉइज पोल्यूशन जो है वो बेचैनी, इज़्तिराबी या अजियत का जो है सबसे बड़ा जरिया है. अब हमें नॉइज पोल्यूशन के बारे में बताया, ये हमारा टॉपिक सेंटेंस है. अब आगे हमें बताया गया है कि इन अर्बन एरियाज एंड बिग सिटीज नॉइज पोल्यूशन हैज रीच्ड to a dangerous level. For instance, a survey by the Punjab Environmental Protection Agency. अब आगे इसमें हमें सर्वे बताया गया पंजाब का. फिर हमें ये बताया गया कि कैसे कैसे शहरी इलाकों में जो है शोर की आलूदगी किस हद तक पहुंच गई है. अब ये जो है हमारे पास इसका सपोर्टिंग सेंटेंस है. ये सारे सेंटेंसेस इस पैराग्राफ को सपोर्ट कर रहे हैं. और फिर आगे कंक्लूडिंग सेंटेंस में हमारे पास जो लास्ट लाइन आती है, दिस मीन्स दैट द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ सो मैनी पीपल इज ऑलरेडी एट रिस्क. कंक्लूडिंग लाइन्स में हमारे पास हमेशा जो है किसी भी बात का, किसी भी जो हम कोई काम बोल रहे हैं तो उसका अफेक्ट जो है, उसका जो रिजल्ट है वो कंक्लूडिंग लाइन्स होती हैं उसकी. स्टूडेंट्स, लेट्स सी पैराग्राफ नंबर 4. Another source of noise pollution in urban areas is the work on construction sites. Construction work in urban areas is usually slow and time consuming. The use of transport and equipment at construction sites, its grilling and piercing sound is a big source of noise pollution. It not only disturbs the general public but also affects the construction workers by causing mental fatigue. Let's see the explanation of this paragraph. Another source of noise pollution in urban areas
is the work on construction sites. Construction sites mean तामीराती जगह या ऐसी जगह जिन पर कोई तामीरी काम हो रहा होता है. शहरी इलाकों में शोर की आलूदगी का एक और जरिया तामीराती जगहों पर काम करना है. Construction work in urban areas is usually slow and time consuming. Time consuming mean time taking. शहरी इलाकों में तामीराती काम आम तौर पर सुस्त होता है और इस पर ज्यादा वक्त लगता है. The use of transport and equipment at construction sites, its grilling and piercing sound is a big source of noise pollution. तामीराती जगहों पर नकलो हमल और तामीराती आलात का इस्तेमाल और इनकी परेशान कुन और तकलीफदेह आवाज शोर की आलूदगी का बड़ा जरिया है. इट्स ग्रिलिंग एंड piercing साउंड जंगलात छीदने वगैरह की आवाज जो लोहे पे काम किया जाता है मशीनों का इस्तेमाल करके. इट नॉट ओनली डिस्टर्ब्स द जनरल पब्लिक बट आल्सो अफेक्ट्स द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बाय कॉजिंग मेंटल फैटीग. फैटीग मीन परेशानी का बायस बनना, थका देना. ये ना सिर्फ अवाम को परेशान करती है बल्कि तामीराती कारकुनों पर जहनी थकावट के असरात का बायस बनती है. क्या चीज? शोर की आलूदगी. Students, the second big source of noise pollution is work by using electronic appliances and the construction work in cities usually time taking and creates noise. Grilling sounds disturb our life and causes restlessness. Students, let's see paragraph number 5. Use of technology is another cause of noise pollution. For example, unmonitored use of mobile phones, electricity generators, music systems and TV all become irritants from time to time. People usually do not switch off their mobile phones or put them on silent modes when they enter offices, hospitals, schools and colleges. They also use electricity generators excessively in residential areas and put other residents ill at ease. Moreover, listening to loud music or TV on a loud volume is another source of noise pollution. For this, people need to develop some civic responsibility so that others may not be in trouble because of their careless actions. Let's see explanation of this paragraph. Use of technology is another cause of noise pollution. Technology का इस्तेमाल शोर की आलूदगी का एक और जरिया है. For example, unmonitored use of mobile phones. मिसाल के तौर पर मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स, म्यूजिक सिस्टम या मौसीकी के आलात एंड टीवी और टीवी यानी इन सारी चीजों का इस्तेमाल क्या हो चुका है? ऑल बिकम इरिटेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. इरिटेंट्स मीन एक ऐसी चीज जो आपको गुस्सा दिलाती है, आप में इश्ताल पैदा करती है. तो क्या है? इन सारी चीजों का इस्तेमाल इंसान में इश्ताल पैदा करता है या फिर उसको रेस्टलेस करता है, बेचैन करता है. People usually do not switch off their mobiles or put them on silent modes when they enter offices, hospitals, schools and colleges. क्या है कि इन चीजों की जो है इन चीजों को जब निगरानी के बगैर इस्तेमाल किया जाता है तो ये सारी चीजें इंसान के लिए इंतहाई नुकसानदेह बन चुकी हैं. और फिर क्या है कि लोग आम तौर पर जब वो दफातर, अस्पतालों, स्कूल और कॉलेजों में दाखिल होते हैं तो वो अपने मोबाइल को बंद नहीं करते या इन्हें साइलेंट पे नहीं लगाते या खामोश तरीके पर नहीं डालते. They also use electricity generators excessively in residential areas and put other residents ill at ease. फिर क्या है कि वो रहायशी इलाकों में भी बिजली के जनरेटर्स जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और दूसरे रहायशियों को परेशान करते हैं या उन्हें बीमारी में मुब्तला करते हैं. Moreover, listening to loud music on TV on a loud volume is another source of noise pollution. और इसके अलावा और क्या चीज है कि बुलंद आवाज में मौसीकी और ऊंची आवाज से टीवी देखना भी शोर की आलूदगी का एक जरिया है. For this purpose या for this people need to develop some civic responsibility so that others may not be in trouble because of their careless actions. इसके लिए लोगों को कुछ शहरी जिम्मेदारी पैदा करने की जरूरत है. सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन शहरी जिम्मेदारी. शहरी जिम्मेदारी पैदा करने की जरूरत है ताकि इनके लापरवाह अमाल से दूसरे लोग परेशान ना हों. Students, as you know that the man has progressed in every field and use of technology in this time period is also a source of noise. Above all, people do not follow law and they don't take tension to avoid such kind of activities which can cause noise pollution.
Students, see the question. How does technology increase noise pollution? What are technology based irritants? कौन कौन सी चीजें जो हैं वो शोर की आलूदगी का सबब बनती हैं जो टेक्नोलॉजी में आती हैं. यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज अनदर सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स, म्यूजिक सिस्टम्स एंड टीवी ऑल बिकम इरिटेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. यानी इन सारी चीजों का इस्तेमाल जो है हमारे लिए बेचैनी और इज़्तिराबी का सबब बनता है. स्टूडेंट्स, लेट्स सी पैराग्राफ नंबर 6. Noise pollution causes not only environmental damage, but it also has a negative impact on human health. It can cause aggression, hypertension, high stress levels, hearing loss, restlessness, depression, and insomnia. Insomnia can further lead to anxiety, bad temper, and emotional stress. In addition, noise pollution can seriously affect the learners. It gives them unnecessary mental and physical tension. Explanation देखते हैं. Noise pollution causes not only environmental damage, but it also has a negative impact on human health. शोर की आलूदगी न सिर्फ माहौलियाती नुकसान का सबब बनती है, बल्कि ये इंसानी सेहत पर भी मनफी असर डालती है. It can cause aggression. Aggression mean गुस्सा, hypertension, high stress level यानी गुस्सा, high blood pressure, hypertension, कशीदगी वगैरह, hearing loss, समात में नुकसान, restlessness, बेचैनी, डिप्रेशन और डिप्रेशन या इज़्तिराब वगैरह का सबब बनती है. एंड इंसोम्निया और नींद ना आना. इंसोम्निया मीन स्लीप डिसऑर्डर जिसमें इंसान को नींद नहीं आती. इंसोम्निया कैन फर्दर लीड टू एंजाइटी, बैड टेम्पर एंड इमोशनल स्ट्रेस. और नींद ना आने की वजह बेचैनी, शदीद गुस्सा और जज्बाती दबाव की तरफ बढ़ जाती है. यानी जब इंसान को नींद नहीं आती तो फिर क्या है कि उसका काम भी ठीक तरीके से नहीं होता और उसमें शदीद गुस्सा और बेचैनी जो है या जज्बाती दबाव बढ़ जाता है. इन एडिशन, नॉइज पोल्यूशन कैन सीरियसली अफेक्ट द लर्नर्स. इट गिव्स देम अननेसेसरी मेंटल एंड फिजिकल टेंशन. और फिर क्या है कि शोर की आलूदगी तालिबे इल्म जो सीख रहे होते हैं, जो इम्तहान वगैरह की तैयारी कर रहे होते हैं, उनकी सलाहियत को भी बुरी तरह मुतासिर करती है और इन्हें गैर जरूरी जहनी और जिस्मानी कशीदगी देता है. Students, noise pollution not only causes environmental damage but also causes many other effects like depression and bad temper, etc. If man could not sleep peacefully, obviously this will affect his work tomorrow. Students, let's see question related to this paragraph. What are the harmful effects of noise pollution on human health? इंसानी सेहत पे जो है शोर की आलूदगी के नुकसानदेह असरात कौन कौन से हैं? Noise pollution not only causes environmental damage, but it also has a negative impact on human health, and it is a biological stress and can cause conditions such as aggression, hypertension, high stress levels, hearing loss, restlessness, depression, etc. यानी ये सारी चीजें जो है शोर की आलूदगी की वजह से पैदा होती हैं. Next paragraph, paragraph number 7. In Pakistan, there is a dire need to bring down the noise levels coming from different sources. The government must gear up and utilize various means to control unwarranted noise levels. For example, the Punjab Environment Protection Agency recommends around 55 decibels of noise level in residential colonies and 75 decibels in commercial areas. These figures must be strictly enforced by the government. Furthermore, the government should ensure smooth traffic flow, block noise emitting vehicles from roads, using noise barriers where necessary, and expedite construction work to minimize noise pollution. Also, the residential societies should come forward to frame and enforce rules in their areas to check unnecessary noise producing agents. Offices, hospitals, and academic institutions should strictly prohibit the use of mobile phones for better noise management. Moreover, people should be discouraged to speak loudly in these areas. Students, let's see explanation of this paragraph. In Pakistan, there is a dire need. Dire need सख्त जरूरत है to bring down the noise levels coming from different sources. पाकिस्तान में मुख्तलिफ ज़राए से आने वाले शोर की सतह को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करने की अशद ज़रूरत है.
द गवर्नमेंट मस्ट गियर अप, गवर्नमेंट को तैयार होना चाहिए या तैयार रहना चाहिए, एंड यूटिलाइज वेरियस मीन्स टू कंट्रोल अनवारंटेड नॉइज लेवल्स, और हुकूमत को मुख्तलिफ जराए इस्तेमाल करते हुए गैर जरूरी शोर की सतह को कम करने की तैयारी करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द पंजाब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी recommends around 55 decibels of noise level in residential colonies and 75 decibels in commercial areas. मिसाल के तौर पर माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की एजेंसी ने तिजारती इलाकों में रहायशी कॉलोनियों में कितने फीसद शोर का है, 55 डेसिबल जो है वो शोर का लेवल काबिल कबूल किया है, और जो कमर्शियल एरियाज हैं, जो तिजारती इलाके हैं, उनमें 75% या 75 डेसिबल की सिफारिश की है या 75 डेसिबल शोर की आलूदगी को कबूल किया है। These figures must be strictly enforced by the government. क्या होना चाहिए कि इन अदादो शुमार पर हुकूमत को सख्ती से नफाज करवाना चाहिए। Furthermore, the government should ensure smooth traffic flow, block noise emitting vehicles from road. क्या होना चाहिए कि हुकूमत को सड़क पर ट्रैफिक के बहाव को यकीनी बनाना चाहिए, ब्लॉक नॉइज इमिटिंग व्हीकल्स फ्रॉम रोड्स, और ऐसी गाड़ियों को सड़क पर आने से रोकना चाहिए जो शोर की आलूदगी का सबब बनती हैं। यूज नॉइज बैरियर्स वेयर नेसेसरी, जहां जरूरत पड़े या जरूरत पड़ने पर शोर की आलूदगी को कम करने के लिए मुख्तलिफ रुकावटों का इस्तेमाल करना चाहिए। एंड एक्सपीडिट कंस्ट्रक्शन वर्क टू मिनिमाइज नॉइज पोल्यूशन, और शोर की आलूदगी को कम से कम करने के लिए तामीराती जो काम है उसकी रफ्तार को बढ़ाना चाहिए। Also, the residential societies should come forward to frame and enforce rules in their areas to check unnecessary noise producing agents. और फिर क्या होना चाहिए इसके अलावा कि जो रहायशी अंजुमनें हैं, मुख्तलिफ किस्म की NGOs हैं, उनको आगे आना चाहिए और गैर जरूरी शोर पैदा करने वाले अनासिर की जांच पड़ताल करने के लिए कवानीन बनाने और इन्हें अपने इलाकों में नाफिज करना चाहिए। नेक्स्ट पेज, ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस शुड स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स फॉर बेटर नॉइज मैनेजमेंट। और इसके अलावा दफातर, हस्पतालों और तालीमी इदारों को बेहतर शोर के इंतजाम के लिए कैंपस में मोबाइल फोन के इस्तेमाल की सख्ती से मुमानत करनी चाहिए। मोर ओवर, पीपल शुड बी डिस्करेज टू स्पीक लाउडली इन दीज एरियाज, और इसके अलावा इन इलाकों में या इन जगहों पर ऊंची आवाज में बात करने की हौसला शिकनी करनी चाहिए। Students, it is very important that government should take strict steps to reduce noise level. Government should block the noise emitting traffic. It is also dire need to increase the work speed in construction areas. So let's see paragraph number 8 and the last paragraph of this chapter. Noise pollution is a serious issue and needs attention at local and state level. People must develop awareness about the dangerous impact of noise on human health. It is therefore a need to acquire more civic sense and responsible attitude to avoid the unnecessary use of noise pollution, irritants in the environment. Only then our country would be a much quieter and peaceful place to live in. Explanation देखते हैं. Noise pollution is a serious issue and needs attention at local and state level. शोर की आलूदगी एक संगीन मसला है और मुकामी और रियासत की सतह पर ज्यादा तवज्जो की जरूरत है। पीपल मस्ट डेवलप अवेयरनेस अबाउट द डेंजरस इम्पैक्ट ऑफ नॉइज ऑन ह्यूमन हेल्थ। इंसानी सेहत पर शोर की आलूदगी के खतरनाक असरात के बारे में लोगों में ज्यादा शऊर की जरूरत है। इट इज देयरफॉर अ नीड टू एक्वायर मोर सिविक सेंस एंड रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड्स टू अवॉइड द अननेसेसरी यूज ऑफ नॉइज पोल्यूशन, इरिटेंट्स इन द एनवायरमेंट। और फिर क्या है कि इंसानी सेहत पर शोर की आलूदगी के खतरनाक असरात के बारे में लोगों में जहां शऊर की जरूरत है, वहां माहौल में इसके गैर जरूरी इस्तेमाल से बचने के लिए ज्यादा शहरी एहसास और जिम्मेदार रवैये की भी जरूरत है। ओनली देन आवर कंट्री वुड बी अ मच क्वाइटर एंड पीसफुल प्लेस टू लिव इन। सिर्फ इस सूरत में हमारा मुल्क पुरसकून और ज्यादा खूबसूरत बन सकता है या रहने के लिए एक बेहतरीन जगह बन सकता है।
Students, noise pollution has become serious issue. People must develop the awareness that how noise is very dangerous to human health. Only in this situation our country would be place to live in. Question देखते हैं, how can we cope with the serious issue of noise pollution? हम कैसे निपट सकते हैं शोर की आलूदगी से? We can cope with this serious issue by developing more awareness about the dangerous impact of noise on human health. Furthermore, the government should ensure smooth traffic flow, block noise-emitting vehicles from roads, and expedite construction work to minimize noise pollution. यानी क्या है कि तामीराती जगहों पर जब काम की स्पीड को तेज कर दिया जाएगा, सड़क पर शोर करती हुई गाड़ियों को आने से रोका जाएगा, तो इस सूरत में हम इस सूरत हाल से निपट सकते हैं. So now we will move towards glossary. Distracts, disturbs mean जो चीज आपको परेशान करती है. Disrupt भी आप कह सकते हैं. Immense, big, huge, बहुत बड़ा. Mushrooming, growing, बढ़ती हुई आबादी. Increasing, excessively, extremely, बहुत शदीद, intensely. Patrolling, guarding, तहफ़्फ़ुज़ वगैरह. Insomnia, sleeplessness, और you can say disorder of sleep. Irritant, annoying, परेशान करना या गुस्सा दिलाना, तैश दिलाना. So students, I hope you got many points about noise pollution and you have to take care about using extra things which can cause noise pollution. We have learnt in this chapter that noise also can cause physical and mental sickness. So it was all about the lesson. Okay students, I hope you understood this lesson very well. Students, as we have done explanation in detail and now we will move towards the question answers of this chapter. First of all, we will solve unit related question answers and let's see question number 1. What is normal functioning and how is it disrupted? जिंदगी की एक आम रूटीन क्या है और किस चीज से इसमें मुदाखलत पैदा होती है या किस चीज से इसमें बेचैनी पैदा होती है, किस तरह पैदा होता है. The normal functioning of life is that one which is free of disruption. It is disrupted by noise pollution. नॉर्मल फंक्शनिंग वो होती है जो किसी भी डिस्ट्रप्शन के बगैर हो, जिसमें कोई चीज खलल ना डाल सके, जिसमें बेचैनी ना पैदा हो सके. और ये डिसरप्ट कैसे होती है, यानी डिस्टर्ब कैसे होती है, शोर की आलूदगी से. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डज टेक्नोलॉजी इंक्रीज नॉइज पोल्यूशन? व्हाट आर टेक्नोलॉजी बेस्ड इरिटेंट्स? टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने किस तरह शोर की आलूदगी में इजाफा किया है और वो कौन सी चीजें हैं या वो कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज है जो हमारे लिए एक गुस्से का बायस बनता है, जो हमें अनॉय करता है, जो इरिटेट करता है. यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज अनदर सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स, म्यूजिक सिस्टम्स एंड टीवी ऑल बिकम इरिटेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. यानी ये सारी चीजें हैं जो टेक्नोलॉजी में आती हैं. मोबाइल फोन है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर का इस्तेमाल है, लाउड म्यूजिक है, लाउड वॉल्यूम पे जो टीवी को हम सुनते हैं, ये सारी चीजें जो है नॉइज पोल्यूशन की एक बड़ी वजह बनती हैं. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट हार्मफुल इफेक्ट्स नॉइज पोल्यूशन इज काजिंग ऑन ह्यूमन हेल्थ? इंसानी सेहत पर शोर की आलूदगी क्या असरात, क्या नुकसानदेह असरात मुरतब करती है? नॉइज पोल्यूशन नॉट ओनली काजेज एनवायरमेंटल डैमेज बट इट ऑल्सो हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ. इट कैन कॉज एग्रेशन, हाइपरटेंशन, हाई स्ट्रेस लेवल, हियरिंग लॉस एंड इंसोम्निया. यानी शोर की आलूदगी न सिर्फ हमारी माहौलियाती जो है नुकसान का सबब बनती है, बल्कि ये इंसानी सेहत पर मनफी असरात मुरतब करती है और हमारे लिए ये एग्रेशन यानी गुस्सा, हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है और समात में नुकसान का सबब बनती है. और इसके अलावा नींद जो है वो नहीं आती प्रॉपरली, पीसफुल हम नींद नहीं सो सकते, यानी आप कह सकते हैं कि स्लीप डिसऑर्डर, और फिर वो सारी चीजें जो मिलके एक मजीद तबाही का बायस बनती हैं. स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. हाउ कैन वी कोप विद दिस सीरियस इशू? हम इस संगीन मसले से कैसे निपट सकते हैं या कैसे इसका सामना या मुकाबला कर सकते हैं? वी कैन कोप विद दिस सीरियस इशू बाय डेवलपिंग मोर अवेयरनेस अबाउट द डेंजरस इम्पैक्ट ऑफ नॉइज ऑन ह्यूमन हेल्थ. क्या है कि हम इस खतरे से ऐसे निपट सकते हैं कि सबसे पहले हमें क्या चीज डेवलप करनी होगी, इस बारे में आगाही पैदा करनी होगी लोगों में, जो इसके खतरनाक असरात हैं जो इंसानी सेहत पर मनफी असर डालते हैं, उस बारे में हमें लोगों को बताना होगा. फर्दर मोर द गवर्नमेंट शुड इंश्योर स्मूथ ट्रैफिक फ्लो. और इसके अलावा यह है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सड़क पर ट्रैफिक के बहाव को यकीनी बनाए
ब्लॉक नॉइज इमिटिंग व्हीकल्स फ्रॉम रोड्स, और क्या है कि सड़क पर शोर करती हुई गाड़ियों को आने से रोकना चाहिए। एंड एक्सपीडिट कंस्ट्रक्शन वर्क टू मिनिमाइज नॉइज पोल्यूशन, और शोर की आलूदगी को कम से कम करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, जो तामीराती काम है, उसको या उसकी स्पीड को ज्यादा करना चाहिए। और जूं वो तेज होगा काम, मतलब वक्त कम लेगा, उसी तरीके से जो है वो शोर की आलूदगी में कमी हो सकेगी। Students, after solving unit related question answers of this chapter, now we will move towards comprehension question answers. First of all, we have question number 1. How do you define noise pollution? शोर की आलूदगी की तारीफ आप कैसे करेंगे? Noise pollution is defined as any form of noise that disrupts the normal functioning of life. शोर की आलूदगी कौन सी होती है कि जो हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग है या नॉर्मल जिंदगी की रूटीन है उसमें खलल डालती है, वो शोर की आलूदगी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2. हाउ इज ट्रांसपोर्ट अ सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन? आमदोरफ्त या गाड़ियां जो है वो कैसे शोर की आलूदगी का एक जरिया है? इट इज अ सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ हॉर्न्स एंड फास्ट ड्राइविंग इन अर्बन एरियाज। शहरी इलाकों में जो लोग ड्राइविंग करते हैं, एक तो उसकी स्पीड बहुत तेज होती है, और फिर दूसरी बात यह है कि एक्सेसिव यूज ऑफ हॉर्न्स, यानी हॉर्न्स का बेजाय इस्तेमाल और लाउड हॉर्न्स का जो इस्तेमाल है वो शोर की आलूदगी का एक बड़ा जरिया है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, हाउ इज कंस्ट्रक्शन वर्क अ कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन? कैसे तामीराती काम जो है वो शोर की आलूदगी का सबब बनता है? कंस्ट्रक्शन वर्क इन अर्बन एरियाज इज यूजुअली स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग। द ट्रांसपोर्ट एंड इक्विपमेंट यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, इट्स ग्रिलिंग एंड पियर्सिंग साउंड इज अ बिग सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। क्या है कि जो तामीराती जगह होती हैं वहां मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है सामान लेके जाने के लिए, और फिर क्या है कि वहां जो ग्रिलिंग साउंड है या पियर्सिंग, लोहे वगैरह को छीदने के लिए जो सामान यूज किया जाता है, जो बिजली के आलात इस्तेमाल किए जाते हैं, वो शोर की आलूदगी का सबब बनते हैं। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4. हाउ इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी काजिंग नॉइज पोल्यूशन? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह शोर की आलूदगी का सबब बन रहा है? यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज अ सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स, म्यूजिक सिस्टम्स एंड टीवी ऑल बिकम इरिटेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। मोबाइल फोन का इस्तेमाल, इलेक्ट्रिक जनरेटर का इस्तेमाल जो है, उसके अलावा म्यूजिक सिस्टम है जो ऊंची आवाज में सुनते हैं हम, टीवी का लाउड वॉल्यूम पे जो यूज है, ये सारी चीजें नॉइज पोल्यूशन का सबब बनते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. व्हाई इज नॉइज डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ? कैसे शोर जो है इंसानी सेहत के लिए खतरनाक साबित होता है या खतरनाक है? Noise is dangerous for human health because it disturbs our nervous system as well as damages our hearing. So it causes aggression, hypertension, restlessness, depression and insomnia. जो शोर की आलूदगी ना सिर्फ हमारे असाब को कमजोर करती है, ना सिर्फ हमारे असाब को बेचैन करती है, ना सिर्फ इससे हमें नर्वस डिसऑर्डर होता है, बल्कि इससे हमें जो है वो हमारी जो समात है वो भी कमजोर हो जाती है, और इसकी बुनियादी जो वजह है वो शोर है। और इसके अलावा मजीद हम में गुस्सा आता है, टेंशन आती है, बेचैनी, इज़्तिराब, डिप्रेशन वगैरह जैसी जो बीमारियां हैं वो जन्म लेती हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशंस मे रिड्यूस नॉइज कमिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस? हम कैसे जो है कौन सी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल कर सकते हैं जो मतलब जिनको हम रोक कर नॉइज पोल्यूशन, शोर की आलूदगी को कम कर सकते हैं, खास तौर पे जो बिजली से चलने वाला सामान है, टीवी, मोबाइल फोन एटसेट्रा। आंसर देखते हैं। लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक और टीवी ऑन अ लाउड वॉल्यूम कैन कॉज नॉइज पोल्यूशन. फॉर दिस पर्पज पीपल नीड टू डेवलप सम सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट अदर्स डू नॉट गेट ट्रबल्ड बिकॉज ऑफ दीज केयरलेस एक्शंस. Offices, hospitals and academic institutions should strictly prohibit the use of mobile phone on campuses. यानी क्या है कि इन सारी चीजों को रोकना चाहिए, और खास तौर पर अस्पतालों, दफातर और जितने भी तालीमी इदारे हैं वहां पे इन चीजों का जो इस्तेमाल है उस पे सख्ती करनी चाहिए, उसको मना करना चाहिए, रोकना चाहिए।